السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر خالد خان۔ میں یونیورسٹی آف گرانادا اسپین میں پروفیسر ہوں، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جینڈر بیسڈ وائلنس یا ڈومیسٹک وائلنس یا انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس، یہ تین ٹرمینالوجی انگریزی میں یوز ہوتی ہے اس پرابلم کے لیے۔ یہ ایک ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک ریسرچ ٹاپک ہے، لیکن یہ ٹاپک پاکستان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آئی ایم گریٹفل کہ ڈاکٹر رئیسہ مریم ہمیں جوائن کر رہی ہیں آئرلینڈ سے، اور یہ میرے ساتھ مل کے ڈسکس کریں گی اس پرابلم کو۔ ڈاکٹر رئیسہ، آپ اپنا انٹروڈکشن پلیز کیجیے گا۔ جی السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر رئیسہ مریم. آئی ایم این FCPS Part 2 psychiatry resident and I worked 3.5 years in Pakistan, Lahore, as a psychiatry trainee, and currently working in Dublin North Mental Health Service as a psychiatry trainee. اوکے، تھینک یو رئیسہ۔ سو پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے یہ ویڈیو بنائی۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی یہ دو پبلیکیشنز ہیں، ان دونوں کے بارے میں بھی بریفلی بات کریں گے۔ ان میں سے ایک کو ریسنٹلی 100 سائٹیشنز مل گئی ہیں، تو اس این امپورٹنٹ مائل سٹون۔ لیکن میرے لیے اس کام کے دوران انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ پچھلے ہی مہینے سپریم کورٹ سے ایک ورڈکٹ آیا، جس کو کہ کہا گیا کہ یہ پاکستانی خواتین کی ایک جیت ہے، اور یہ ڈون کی ویب سائٹ سے آپ کو آئٹم دکھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی نوٹس کیا کہ یورپین یونین میں پاکستان میں جو جینڈر ایکوالٹی کا ایجنڈا ہے، اس کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے فنڈنگ موجود ہے۔ اس بارے میں رئیسہ آپ کیا کہیں گی کہ یہ ایک پاکستان میں کامن پرابلم ہے، اور اس کیس کا کیا امپیکٹ تھا؟ اچھا ڈاکٹر خالد، ایک بہت بڑا مسئلہ جو پاکستان میں کئی سالوں سے، بہت زیادہ سالوں سے ہے، اور اس کے اوپر اس طرح سے بات نہیں کی جاتی، جبکہ جب ہم چھوٹے تھے اور ہم دیکھتے تھے ایسی چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، تو ہمیں لگتا تھا کہ جب وقت گزرے گا اور ایڈوانس ٹائم آئے گا تو چیزیں کم ہو جائیں گی، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہم بھی بڑے ہو گئے اور یہ چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہو رہی ہیں، کیونکہ اب تو میڈیا ہے تو اور زیادہ میڈیا کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں تو زیادہ پتہ چلنے لگ گیا ہے، جبکہ یہ چیزیں پہلے بھی اتنی ہی تھیں لیکن اس طرح سے بتائی نہیں جاتی تھی۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، کیا یہ ورلڈ وائڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کا، اور اس کے اوپر بات کرنا اس لیے اہم ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کسی سوشل ورکر کی یا کسی جسٹس ڈپارٹمنٹ کی یا کسی ویمن رائٹس والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں۔ یہ ہم سب کی ایک ایز اے سوسائٹی سب کی ذمہ داری ہے کہ اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات کریں تاکہ ہم اس کو بہتری کی طرف لے جا سکیں۔ اور جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہائی لائٹ ہونے والا کیس ہے۔ اس کا ورڈکٹ ریسنٹلی اناؤنس ہوا اینڈ آئی کیم ٹو نو کہ فائنلی کسی کو پنشمنٹ ملی اس کے ایکٹ کی، جو کہ بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے کچھ غلط کیا تو اس کو تو سزا نہیں ہوئی، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب کسی کو سزا ہو تو ان کے اندر کوئی ڈر بیٹھے گا کہ نہیں یہ چیز ہمیں نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں اس کے کوئی کانسیکوینسز ہیں، اس کا ہمیں اگر ہم نے غلط کیا کسی کے ساتھ تو ہمیں بھی آگے سے کچھ فیس کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کو یہ ہوگا کہ ہم کچھ بھی کریں اور ان کو فیس نہیں کرنا پڑے گا تو پھر یہ چیزیں بڑھتی ہی جائیں گی۔ تو ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے میری نظر میں۔ اوکے، تھینک یو ڈاکٹر رئیسہ، آپ نے جس طرح سے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ آگے چلتے ہیں، ذرا آپ کو بتاتے ہیں اپنے دو پیپرز کے بارے میں۔ پہلے جب جی 5 سال پہلے ہم نے اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، تو تقریباً 12 ہوں اسٹڈیز اس وقت موجود تھیں جنہوں نے ورلڈ وائڈ لٹریچر کو ریویو کیا، لیکن ان کی اسٹڈی کوالٹی اتنی اچھی ہوں نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے ہم نے اپنی اسٹڈی کی، اور اپنی اسٹڈی میں ہمیں 152 پبلشڈ اسٹڈیز ملیں، جن میں سے یہ پتہ چلا کہ 3 4 مختلف قسم کی ڈیفینیشنز ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی۔ اچھا، ڈومیسٹک وائلنس میں فزیکل وائلنس بھی ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل اور سیکشول بھی، اور ان سب چیزوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا وائلنس ہو سکتا ہے۔
اور پریگننسی کے دوران چونکہ خواتین ہیلتھ سسٹم سے کانٹیکٹ میں آتی ہیں، اس لیے پریگننسی میں یہ ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ اس پرابلم کو کوانٹیفائی کیا جا سکے. تو جن اسٹڈیز نے ان کو کوانٹیفائی کیا ان سے یہ پتہ چلا کہ ورلڈ وائڈ لیول پہ 1 in 4 women، یعنی کہ 25% آر افیکٹڈ بائی دس ٹائپ آف پرابلم. اور سائیکولوجیکل وائلنس کو دیکھا جائے تو تقریباً 20% ہے، اور فزیکل تقریباً 10% ہے. اور یہاں جب ہم ورلڈ وائڈ میپ دیکھتے ہیں تو یہاں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں جو رپورٹڈ ڈیٹا ہے اس کے لحاظ سے ہمارے یہاں جو لیول آف ڈومیسٹک وائلنس یا جینڈر بیس وائلنس ہے وہ دنیا کے تقریباً ہائیسٹ لیولز میں سے ہے. اسی چیز کو اب لے کر آگے چلتے ہیں ڈاکٹر رئیسہ. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب جی یہ پرابلم موجود ہوتا ہے تو خواتین اور ان کی فیملی کے اوپر بہت مختلف قسم کے ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. کہ ایک ایکسٹریم ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے، جیسے کہ اس سپریم کورٹ والے کیس نے ریسنٹلی ہائی لائٹ کیا. لیکن یہ جو باقی چیزیں جن کے جی بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے، آج آپ کھل کے بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے. جی اچھا یہ ایسا ہے ڈاکٹر خالد کہ جب آپ وائلنس کسی کے ساتھ بھی ہو، جینڈر کو ہم اگر ایک سائڈ پہ رکھ دیں، فیمیلز کیا میل ہو جائے فیمیل ہو جائے، کسی بچے کسی بھی ایج کے بندے کے ساتھ ہو، اور وائلنس کیا ہے کہ تشدد یا کسی طرح کی زیادتی، ٹھیک ہے. اور اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، اس کی ڈفرینٹ یعنی مختلف اقسام ہیں، جس میں کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی تشدد یعنی نفسیاتی تشدد، جس کو سائیکولوجیکل ٹارچر کہتے ہیں. ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ اگر وہ زبانی طور پہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کوئی گھر میں کر رہا ہے، مسلسل بیڈ لینگویج کا استعمال کر رہا ہے، یا پھر آپ کو ہر وقت نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر آپ ذہنی طور پر خوش نہیں رہ سکتے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ سائیکولوجیکل یعنی کہ نفسیاتی تشدد. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایموشنل، وہ بھی اسی کے اندر ہی آ جائے گا، لیکن ایک سیپریٹ ہے کہ ایموشنلی طور پر آپ کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو میں یہ نہیں کر سکتا، یعنی اگر تم نے مجھے اس چیز میں سپورٹ نہیں کیا، یہ چیز نہیں دی تو، یعنی بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ یہ چیز استعمال کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ان کو ایموشنلی طور پہ جو ہے نا اپنے رشتوں کا استعمال کرتے ہوئے، ان کے ایموشنس کو انوالو کرتے ہوئے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کو ایموشنل ٹارچر بھی کہہ سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس آتا ہے فزیکل وائلنس، جس کو کہتے ہیں کہ جسمانی تشدد. یہ وہ ہے جس کے اندر ہم کسی بھی کے ساتھ اگر ہم اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے جا رہا ہے، اگر اس کو کسی بھی چیز یعنی کہ اگر آپ ہاتھ نہیں تو کوئی بھی ویپن کے تھرو یا کسی بھی چیز کے ساتھ اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں آتے جاتے، یا پھر کسی بھی طرح سے، تو وہ فزیکل ٹارچر آتا ہے. پھر ہمارے پاس ایک اور قسم جو اس کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیکشول وائلنس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جنسی تشدد. اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. اگر ہمارے جیسے پاکستان یا ایشیا کی جو سوسائٹیز ہیں، ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ آپس میں گھل مل کے رہتے ہیں، تو لوگوں کا آنا جانا بھی گھر میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے ریلیٹیوز آ رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بچوں کو اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، یا پھر آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف، جب کنسنٹ ایک ایسی چیز ہے، کنسنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی مرضی شامل ہونا. اگر آپ کی مرضی شامل نہیں ہے تو کوئی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو فزیکلی سمپلی بھی ٹچ نہیں کر سکتا، کہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، ہاتھ ملا بھی نہیں سکتا. تو اگر کسی کی کنسنٹ نہیں ہے، پھر چاہے اس کی جو بھی ایج ہے، کوئی اس کو اگر رانگلی کسی بھی جگہ پہ پرائیویٹ پارٹس پہ ٹچ کر رہا ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے، تو یہ سیکشل وائلنس کے اندر آتی ہے چیز. اور یہ ہماری سوسائٹیز میں بہت عام ہے. چلتے پھرتے خواتین کے ساتھ گلیوں میں اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اسٹرینجر ان کو ٹچ کر کے گزر گئے، یا کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ سوشل رائٹس والے بات کریں، لیکن ہم لوگوں کی کیونکہ یہ معاشرے کا مسئلہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جن خواتین کے ساتھ یہ تشدد ہوتا ہے ان کے اوپر ذہنی کیا اثر آتا ہے. وہ ہمارے پاس جب پریزنٹ کرتی ہیں ایز اے ڈاکٹر، ہیلتھ کیئر ورکر، تو وہ کس طرح سے پریزنٹ کر سکتی ہیں.
ज़रूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन में ही आए। ये होता है कि वो ज़हनी तौर पर एक तनाव में चली जाती हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है, वो उस तरह से नहीं अपने आप को प्रेज़ेंट कर पातीं, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स आने लग जाते हैं, छोटी-छोटी बातों में परेशान हो जाना, हर वक़्त उदास रहना, किसी चीज़ में खुशी ना मिलना, छोटी-छोटी कामों में थक जाना जिसको फटीग कहते हैं। तो ये सारा स्ट्रेस की वज़ह से ये सब चीज़ें तो उनमें होती ही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं कि सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स हम उनको कहते हैं, जिसमें कि स्ट्रेस जो वो स्ट्रेस की बजाय वो फिजिकल किसी सिम्टम के वे में आपको मिलेगा। यानी कि एक खातून आएंगी, वो अपने मुंह अपनी इस तशद्दुद को छुपाती रहेंगी कि वो लोगों को शर्म की वजह से या फिर इस डर की वजह से कि कोई उनको जज करेगा या उनके शौहर को जज करेगा, वो अब छुपाती हैं इस चीज को। लेकिन वो आएंगी इस प्रेजेंटेशन के साथ कि उनके हर वक़्त सर में दर्द रहता है और आपने सारे चीज़ें चेक कर ली, कोई मसला ही नहीं आ रहा, हर चीज़ ठीक है, लेकिन इनका सर का दर्द नहीं जाता। ठीक है, इनका एक माइग्रेन का इश्यू है, वो कहेंगी मेरा सर फटता रहता है और मुझे नहीं पता, ये मैं गोलियाँ भी खाती हूँ तो नहीं ठीक होता। तो या फिर वो कहेंगी कि मेरे पेट में दर्द रहता है, मेरी कमर में दर्द रहता है, मैंने सारे टेस्ट करा लिए, मैंने सारे इलाज करा लिए, मैं ठीक नहीं हो रही। क्योंकि असल वजह कोई और है। असल वजह वो स्ट्रेस है जो उन्होंने अपने अंदर छुपाया हुआ है। तो वो जब रीसरफेस होता है सबकॉन्शियस माइंड से, तो वो एक सोमैटिक सिम्पटम यानी जिस्मानी सिम्पटम की तरह से प्रेज़ेंट करता है बार-बार। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से, इसलिए हमारी अगर हम हेल्थ केयर में देखें, एज़ अ डॉक्टर देखें, तो हम हमारी डिटेल्ड हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है। एक तो ये कि हम कितने अच्छे से उनसे वो बिल्ड कर सकते हैं इमोशनल रिलेशनशिप अपने पेशेंट से, कि हम उनसे कि वो ओपनली हमसे बात कर सकें। हम उनको कितना टाइम दे रहे हैं कि वो अपने उस प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकने का सोचें कि यार मैं इससे अपनी बात को शेयर कर सकती हूँ जो मैं कभी किसी से नहीं कर सकी, और वो हम पे ट्रस्ट कर सकें। फिर उसके बाद जब वो हम अच्छी हिस्ट्री लेंगे, हमें पता चलेगा कि किस तरह से इनसे पूछना है कि क्या चीज़ है जो इनको परेशान कर रही है। क्या ये सिर्फ़ यही सिम्पटम है या कोई और भी बात है जिसकी वज़ह से, और इसके साथ और क्या सिम्पटम्स हैं, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वो सिर्फ़ एक चीज़ के साथ आ रही है, अगर आप उससे ये पूछ लें कि आपकी इसके साथ नींद कैसी है? आपका खाना-पीना कैसा है? भूख लगना कैसा है? आपका कोई वज़न कम तो नहीं हुआ इसके साथ? या आपकी नींद कम हो गई हो, खाने-पीने का दिल ना चाहता हो, अपना ख़्याल रखने का दिल ना चाहता हो, नहाने का दिल ना चाहता हो, या घर के कोई काम करने का दिल ना चाहता हो, तो वो इससे भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ हो जाएँगे कि यकीनन इसके पीछे कोई स्ट्रेस है। जिसकी वजह से ये ऐसे फ़ील कर रही हैं। जी, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। यहाँ पे चलते चलते या ये भी हाईलाइट कर दें कि डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर वो खातून अपने लिए कुछ नहीं कर सकती तो फिर कौन उसके लिए कुछ करेगा। तो अगर ये डॉक्टर इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग के ज़रिए ये आइडेंटिफाई कर ले कि यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस का रिस्क है, तो फिर उसके ऊपर एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है कि वो उसमें हुँ, आगे चल के मदद भी करे। इसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर हुँ। रईसा? अच्छा, इसके बारे में ये है कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में या डिफरेंट रीजन्स में अलग लॉज़ हैं। अब एशिया के लॉज़ अलग हैं, यहाँ कुछ मुल्कों के, पाकिस्तान के लॉज़ अलग हैं, और जैसे हमारे यहाँ पे यूरोपियन लॉज़ अलग हैं। वो यहाँ पे ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आयरलैंड में ऐसे है कि अगर आपके पास कोई केस ऐसा आता है जो कि आपको ये क्लियरली बता रहे हैं कि उनके साथ वायलेंस हो रही है, और आपको लगता है कि इनकी जान खतरे में है, या फिर इनके घर में कोई बच्चा है या छोटा है या कोई बंदा है जिसकी जान खतरे में है, जिसको हम रिस्क ऑफ होमिसाइडल रिस्क कहते हैं। तो उसके अंदर हमने रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे कुछ सोशल इदारे ऐसे हैं जिनमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और पाकिस्तान में भी अगर आप पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करते, वैसे तो आपका एज़ अ डॉक्टर ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको चाहिए कि आप उनको पहले तो ये बताएँ कि ये बहुत ज़रूरी बात है कि इस चीज़ को रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि आप इसको सह रही हैं, लेकिन इसका सिर्फ़ आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं है, इसका इम्पैक्ट एक तो आपकी जान खतरे में है। दूसरा, इर्द-गिर्द अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसकी जान भी खतरे में हो सकती है। अगर कोई बहुत एल्डरली है तो वो स्ट्रेस ले लेके उनके लिए भी खतरे में हो सकता है। तो हमें सबके ऊपर इसका इम्पैक्ट देखते हुए इस चीज़ को रिपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है? और उनको भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ख़वातीन को कि हमें इस चीज़ को सहना नहीं है, बल्कि इसको रिपोर्ट करना है।
यहाँ पे एज़ अ हेल्थ केयर वर्कर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब किसी की जान खतरे में हो, तो हम पहले तो उनसे कंसेंट भी लें कि हम शुरू में ही उनको बताते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी एक चीज़ होती है। जब वो हमसे कुछ भी शेयर करने पेशेंट आता है और वो हमसे शेयर करना शुरू करता है बात, तो हम उनको कहते हैं कि आपकी और हमारे दरमियान जो भी बात है, वो हमारे दरमियान ही रहेगी। यहाँ तक कि आपकी या किसी और की जान को खतरा हो या लाहक हो, तो फिर हमें इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा या फिर किसी और से करनी पड़ेगी बात। तो ये बात पहले ही बता देनी चाहिए उनको कि ये चीज़ ज़रूरी है। फिर ये कि हमारे मुल्कों में क्यों लोग डरते हैं रिपोर्ट करने से? क्योंकि उनको पता है कि जो जस्टिस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, वो किसी को भी उस तरह से इंसाफ मुहैया नहीं कर रहा। उनको पता है कि उनका केस कहीं भी नहीं जाएगा, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। इन द एंड वो घर में भी एक परेशानी हो जाएगी और वो और ज़्यादा फँस जाएँगे। इसलिए वो डरते हैं अपनी बात को करने में। तो अगर ज ड एक चीज़ तो ये हो गई कि अगर आपके डिपार्टमेंट्स को, यानी आपके जो सोशल जस्टिस के डिपार्टमेंट हो गए, इन जनरल पुलिस डिपार्टमेंट हो गए और वुमेन राइट के डिपार्टमेंट हो गए, इनको ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। इनको ज़्यादा बेहतर से काम करना होगा। उसके अलावा सर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे घर में इर्द-गिर्द के लोग हैं ना, जो हमारी जो सोसाइटी को बनाते हैं हम लोग, अगर हमारे इर्द-गिर्द हमने खुद बड़े होते हुए देखा, कई ख़वातीन ऐसी थीं, इवन हमारी मेड्स हो गई फॉर एग्जांपल, तो वो तशद्दुद का शिकार, उनके हस्बैंड्स उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, वो और काफ़ी अरसे से हमारे घर आ रहे हैं और हम उनको कहते हैं कि गलत है, ये गलत है। हम सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये क्यों नहीं चेंज हो रहा, ये क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि उनको ये कहा जाता था कि तुम सब्र कर लो, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा शौहर ही तो है, अगर वो कर रहा है तो वो तुम्हें ओन करता है, उसका राइट है तुम्हारे पे। अगर वो हाथ उठा रहा है तो क्या हो गया? तुम्हारा ख्याल भी तो रखता है। तो ये यहाँ की सोसाइटी, यूरोपियन की सोसाइटी में जो मेन डिफरेंस है किसी भी वायलेंस को लेके, वो उसके रिस्पॉन्स का डिफरेंस है। इधर रिस्पॉन्स ये होता है कि लोगों को पता है कि ये मेरा राइट है कि कोई मेरे साथ ज्यादती नहीं कर सकता, ये गलत है मेरे साथ जो हो रहा है। वहां पे क्या होता है कि हमें सिखाया ये जाता है हमारे खवातीन को एशियन सोसाइटी के अंदर कि क्या हो गया अगर उसने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, वो तुम्हारे ख्याल भी तो रखता है, वो घर में पैसे भी तो ला रहा है और वो तुम्हारे बच्चों को भी तो दिख रहा है। या फिर वो एक अल्टरनेटिव एक्सक्यूज दे देते हैं जिसकी वजह से जो विक्टिम होता है उसको लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो शायद ये ठीक है, बिल्कुल यही होना चाहिए। और दूसरा विक्टिम ब्लेमिंग, उसको विक्टिम को ब्लेम किया जाता है कि जो है ना, शायद तुमने कुछ गलत किया होगा, शायद तुम्हें उसको आगे से जवाब नहीं देना चाहिए था, इसलिए उसने तुम्हारे पे हाथ उठाया, तुम चुप हो जाती, तुम आगे किसी से बात नहीं करती, तुम अपने तक रखती, कोई बात नहीं, अगली दफा वो ऐसा नहीं करेगा। तो ये चीजें, प्लस जो हमारे पीछे से घर वाले हैं, फैमिलीज हैं, वो ख़वातीन को शादी के वक़्त ये कह के भेजती हैं कि भैया वो तुम्हारा घर है और वहाँ जो भी हो रहा है तुमने वहीं रहना है और उसको निभाना है। जबकि उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता कि कुछ भी हो, तुमने हमसे आके शेयर करना है और तुमने अपने आप को अकेला फ़ील नहीं करना और तुमने अपना स्टैंड लेना है। और ताकि उनको ये कॉन्फिडेंस हो कि वो उसको सहती ना रहें, वो उसको ख़त्म करें, इस चेन को, ब्रेक करें। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल लेवल पे भी, हमारे माशरती तौर पे भी हमें इन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए कि हम औरतों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि जिसके साथ ज़्यादती हो रही हो, वो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, उसको पता है मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मुझे इसको सहना नहीं है, मुझे इसके ऊपर बात करनी है, ताकि मेरे बच्चों पे भी। दूसरी सर एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर खालिद, के जो हम ये नहीं देखते, ख़वातीन कहती हैं कि बच्चों को ये कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सह लिया क्योंकि मैं तुम लोगों को लेके कहाँ जाती, बच्चों को ऐसे कहते हैं। तो ये जो बच्चा बड़ा हो रहा है उस घर में, जिस घर में उसकी माँ जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसके साथ मुसलसल तशद्दुद हो रहा है, इवन वर्बली अगर उनकी माँ को बार-बार नीचा दिखाया जाए या उनके साथ अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, तो इस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा? इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? इसका इमोशनल ट्रॉमा क्या होगा? इसके अंदर बड़े होके अटैचमेंट स्टाइल्स कितने बुरे होंगे? वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, उसको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, उसको कितने ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं साइकोलॉजिकली, इमोशनली, और उसकी पर्सनैलिटी शटर हो जाएगी। इसके बारे में भी कोई नहीं सोचता। तो ये इम्पैक्ट है कि अगर एक खातून अपने राइट के लिए स्टेप उठाएँगी, तो वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं, वो अपने बच्चों के लिए एक पॉज़िटिव स्टेप उठाएँगी। उनको पता चलेगा हमारी माँ के साथ गलत हुआ, उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, तो वो भी फिर अपने लिए स्टैंड लेंगे। थैंक यू फॉर हाइलाइटिंग दिस। यहाँ पे दो बातें मैं ऐड करना चाहूँगा। एक ये कि अगर जी, प्रेगनेंसी के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो खातून,
تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اس हुँ, کے بچے کی پیدائش بھی پریمیچورلی ہو سکتی ہے، بچے کا ویٹ بھی کم ہو سکتا ہے، اور دوسری مشکلات سے بھی وہ بچہ گزر سکتا ہے کیونکہ اس کی ماں افیکٹڈ ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری हुँ, بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے آلریڈی ہائی لائٹ کیا کہ فیملی سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے، سوشل سروسز کی رسپانسبلٹی ہے، پولیس کی رسپانسبلٹی ہے، جسٹس سسٹم کی رسپانسبلٹی، اور ہیلتھ پروفیشنلز کی بھی رسپانسبلٹی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مریض ایمرجنسی میں آیا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے، تو جب اس کے پاس ہیلتھ سروس کے हुँ, لیے وہ پہنچے تو آلریڈی ڈومیسٹک وائلنس کا ایکشن تو لیا جا हुँ, چکا تھا۔ یہاں پہ ان کی صحت کا بھی خیال رکھنا हुँ, ہے اور ان کو فیوچر میں بھی پروٹیکشن دینی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ हुँ, ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجیز हुँ, کو استعمال کر کے آ، ایسی ایسی موبائل اپلیکیشنز ڈیولپ کی جا سکتی ہیں جو کہ کوئی فزیکل یا ڈیتھ ایونٹ ہونے سے پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے آٹومیٹکلی ایکشن لینے کے لیے فون کر سکیں یا رشتہ داروں کو یا پولیس کو۔ تو اس ٹاپک میں بھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس قسم کا پروجیکٹ آگے کیا جا سکتا हुँ, ہے۔ ڈاکٹر رئیسہ، हुँ, اس ویڈیو کو دوبارہ لے کر آتے ہیں انہی دو چیزوں پہ۔ जी, ایک جو یہ کیس ہوا جہاں کہ جسٹس سسٹم نے یہ شو کیا کہ جو پرپیٹریٹر ہے، हुँ, جس نے ظلم کیا ہے، اس کو سزا ملے گی اور جو وکٹم ہے اسے انصاف ملے گا۔ हुँ, اور ساتھ ہی یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین اور باقی آرگنائزیشنز بھی جسٹس سسٹم کو اور سوشل سروس سسٹم کو اور خواتین کو امپاور کرنے کے لیے، انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پہ کیسے हुँ, آپ کنکلوڈ کریں اس ویڈیو کو، میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا سمرائز کیجئے۔ जी, थैंक यू सो मच। सो मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप मुझे लगता है कि अगर हम अपने माशरे में देख रहे हैं, एज़ अ हेल्थ केयर वर्कर भी हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर हम बेसिक लेवल से देखें कि रूट लेवल से देखें कि कहाँ से इश्यू आ रहा है, तो हमारे इर्द-गिर्द ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो कि हम बहुत अरसे से नज़रअंदाज किए जाते हैं, तो फिर वो बहुत वर्स फॉर्म में सामने आती हैं। तो अगर हम कहाँ पे उसको रोका जा सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख रहे हैं कि कोई किसी के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मेड है और उस वो आके आपको बता रही है कि मेरे हस्बैंड ने आज मेरे पे तशद्दुद किया है, और आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप उसको अच्छा खाना दे रहे हैं, आप उसको दवाई दे रहे हैं, आप उसको वार्म क्लोथ्स दे रहे हैं क्योंकि आप उसकी फ़िक्र करते हैं, लेकिन आप उसके हस्बैंड से जाके बात नहीं कर रहे, आप उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे, तो फिर वो कल फिर वही करेगा। क्योंकि शायद ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कर रहा है उसको कन्फ्रंट किया जाए। उसको बताया जाए कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है और इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। अगर जब तक कि परपेट्रेटर यानी जिसने कि ये कर रहा है विक्टिम के साथ जो अब्यूज़ कर रहा है, जब तक उसको कन्फ्रंट नहीं किया जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि उसके एक्शंस जो है वो कितने गलत हैं और उ उसके एक्शंस के अगेंस्ट भी एक्शंस हो सकते हैं, तब तक वो उस चीज़ को कंटिन्यू रखेगा। तो हमें बिल्कुल रूट लेवल पे इस चीज़ के खिलाफ करना चाहिए, और हमारे अगर अपने ख़ानदानों में ऐसा हो रहा होता है कि कुछ लोगों के साथ फिज़िकल वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस में जो है वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल वायलेंस हो रही होती है, कि उनके साथ बदतमीज़ी का सलूक हो रहा है, उनको अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, उनके साथ डिफरेंट तरह के अब्यूज़ हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं और आप कहते हैं ये उनके घर का मसला है, ये हमारे घर का मसला नहीं है, जबकि ये गलत है। ये अगर हो रहा है तो आपको उनके जो भी ये कर रहा है मेल है फैमिली का या जो भी उनके फैमिली मेंबर हैं, आप उनसे प्राइवेटली जाके एक बार ज़रूर अपने किसी बड़े को भेजें या जो भी आपको लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है जो अच्छे अल्फाज में बात कर सकता है, उसको एड्रेस करें ताकि उनको पता हो कि इर्द गिर्द के लोग हमारे इन एक्शंस को देख रहे हैं और इन एक्शंस का कोई इम्पैक्ट हो रहा है। तो ताकि वो उनके अंदर एक खौफ हो इस चीज़ का कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो गलत है और लोगों को दिख रहा है कि गलत है। दूसरी चीज़ ये कि हमें अपनी बेटियों को यानी हमारी जो विमेन है, इनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, उनको उनके राइट्स बताने होंगे कि ये आपके हुकूक हैं और ये आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, ये एक नॉर्मल ह्यूमन का राइट है जो आपको मिल रहा है, और आप इक्वल हैं, हर जेंडर एक दूसरे के इक्वल है, कोई किसी से कम नहीं है।
ठीक है? सब एक-दूसरे के बराबर है। तो आपका भी वही हक है जो कि किसी और का है। अगर आप अपने हस्बैंड पे हाथ नहीं उठा सकती, क्योंकि औरत हाथ नहीं उठा सकती, तो फिर मर्द भी हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि आप भी उनकी वाइफ हैं और आप इक्वल मेंबर इन अ मैरिज हैं। तो जब हम उनको इस तरह से सिखाएँगे, जबकि ना कि वो हमारे पास ट्रॉमा के बाद आएँ और वो बताएँ कि उसने मेरे साथ ये किया, और हम कहें कि तुम सह लो। सब्र जो है वो बहुत अच्छा होता है, सब्र से जो है अल्लाह ताला बहुत अजर देते हैं, और हम तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, वक़्त के साथ-साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, हमें ये गलत है कि आप किसी के साथ गलत हुआ और आप उसको सब्र की उस टाइम तलकीन करें, जबकि आप उस इश्यू को एड्रेस ना करें, तो वो इश्यू नहीं जाएगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि एक तो ये हो गया। फिर जब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप पे, जब वो घर से निकल के चीज़ हॉस्पिटल तक आ गई, इसका मतलब है कि उसका लेवल इतना था कि वो घर तक नहीं रह पाई और वो हुँ, घर हुँ। से यहाँ आ गई है, तो ट्रॉमा का लेवल एक नेक्स्ट स्टेज पे। अब आपका रोल एज़ अ डॉक्टर आता है। तो आपने पहले तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को इसीलिए कहते हैं कि आप यू आर अ गुड फिजिशियन इफ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर। यू कैन सी things are not matching with the history, हुँ, हुँ। and if someone is saying I fell from the stairs, कोई कह रहा है मैं सीढ़ी से गिर के आई हूँ, जबकि वो प्रॉपर्ली एक पंचिंग का है, या फिर वो वुंड सीढ़ियों से गिरने का है ही नहीं, ठीक है? और आपको क्लियरली एक थप्पड़ का निशान दिख रहा है और वो कहे कि मैं तो शायद नीचे गिर गई थी, या मुझे तो पाँव स्लिप हो गया हुँ, था। हुँ। तो आपको एज़ अ डॉक्टर यू कैन सी दीज़ थिंग्स, आप यू आर ट्रेन्ड फॉर दिस। आप एज़ अ डॉक्टर आप ट्रेन्ड होते हैं इन चीज़ों को पिक करने के लिए। वहाँ पे आप उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फ़ील कराएँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनको इमोशनली ये फ़ील कराएँ कि मैं इस वक़्त, आप जिस भी मुश्किल से गुज़र रहे हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आप एक बहुत मुश्किल से गुज़र रही हैं, तब भी आप इस वक़्त यहाँ हैं। लेकिन आप इतना ज़रूर हम पे भरोसा कर सकते हैं कि अगर आप किसी मुश्किल से गुज़र रही हैं, तो आप ओपनली हमसे शेयर करें, ताकि हम आपको बेहतरीन मदद जो है वो दे सकें। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अगर वो उस इंसान से डर रही है जो इर्द-गिर्द है, तो आप उनको बाहर भेज के इनसे प्राइवेटली भी बात कर सकती हैं कि इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल कि ये यहाँ पे कोई भी बंदा मौजूद है जिसका डर आपको इस टाइम है, तो हम आपसे अकेले में बात करेंगे। आप ओपनली हमें बताएँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है। और वन्स वो आपको सच-सच बता दे, उसके बाद बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि आपने क्या एक्शन किया। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एटलीस्ट रिपोर्ट करें। आपके जो भी जिधर भी जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, वहाँ के जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, जो भी वहाँ के जस्टिस सिस्टम है, वहाँ पे आपने रिपोर्ट करना है। अगर आपने 15 में पुलिस को रिपोर्ट करना है, अगर आपने जो वुमेन राइट्स की किसी फाउंडेशन को करना है, अगर आपने किसी सोशल जस्टिस वाले को करना है इन्वॉल्व, जिस तरह से भी आपने जिस भी हुकूक के या फलाही इदारे से आपने रुजू करना है इस पे, तो आप करें। लेकिन कोई स्टेप ज़रूर करें, अपने तक ना रखें, रिपोर्ट करें, ऊपर से इसको आपने रजिस्टर करें, ताकि एक वल्नरेबल इंसान जो कि फर्दर और बहुत ज़्यादा जिसके साथ बुरा हो सकता है, आपने वो अपना फ़र्ज़ निभाया कि आपको पता चली, तो आपने बात एटलीस्ट आगे रिपोर्ट कर दी, ठीक है? उसके बाद आता है रोल जस्टिस सिस्टम का कि उनको ज़्यादा एक्टिव होना होगा, ताकि ये चीज़ें हमारे मुआशरे से कम हों। ख़त्म होने में तो वक़्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट कम हो, क्योंकि नाउ इट इज़ अप टू अस। हम जब छोटे थे तो हम कहते थे कि ये इर्द-गिर्द क्यों हो रहा है? लेकिन अब हमारे ऊपर है सब कुछ, अब हमने सब चेंज करना है। सो आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम नाउ कि इस चीज़ के ऊपर कुछ हो सीरियसली। डॉक्टर रईसा, आई एम मोस्ट ग्रेटफुल, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जिस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया है और इसके सॉल्यूशन हुँ, को हाईलाइट किया है सोसाइटी और मेडिक्स दोनों के लिए, आई थिंक जी। दिस विल बी वेरी, वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर